Good morning, student. Our today's topic is geosynthetic noise reducing asphalt porous pavement. And in the road material topic, we will see plastic road, anti-icing road, and piezoelectric road also. So, vision mission of the program is to impart excellent civil engineering skills to develop employable civil diploma engineers. To fulfill this vision, we have various missions, effective implementation of teaching learning process to benefit student, imparting the modern technical skill as per the requirement of the industry to improve employability, to develop social and environmental responsible civil engineer. So, learning outcome you will be achieving during this session is list the advanced construction material for given construction project. Identify the properties of given advanced material. Enumerate the application of given form of material in civil engineering. Identify the situation to use the civil material. Justify the use of given material for given site condition. Course outcome mapped with this unit is suggest the advanced material as per site condition. POs mapped with unities PO1, PO3, PO4, PO5, PO6, PO7 and PSO1, PSO2. So, the first topic in the road material and very important topic is geosynthesis. What is geosynthesis? Geosynthetic are human-made material made from various type of polymers. ह्यूमन मेड मटेरियल है, इंसान बनाता है ये मटेरियल. काय से? पॉलीइथिलीन से, पॉलीप्रोपिलीन से, पॉलीईस्टर से, नायलॉन से एंड पॉलीविनिल क्लोराइड से. प्लास्टिसाइड और नॉन प्लास्टिसाइड. ये कौन सा मटेरियल है? ये ह्यूमन मेड मटेरियल है. ये इंडस्ट्री में बनता है विथ बाय यूजिंग वेरियस टाइप ऑफ दीज मटेरियल्स. They are used with soil, rock, or other geotechnical related material to provide one or more function. कौन से फंक्शन? सेपरेशन, रेनफोर्समेंट, फिल्ट्रेशन, ड्रेनेज और लिक्विड बैरियर. देखो, ये मटेरियल सॉइल के साथ, रॉक के साथ, जियोटेक्निकल रिलेटेड मटेरियल मतलब ज़मीन में यूज़ करते. काय के लिए करते? किसी चीज़ को सेपरेट करने के लिए. कहीं अगर सेपरेशन लगाना है तो ये चीज़ का यूज़ कर सकते हैं. कहीं अगर रेनफोर्समेंट रोड बना सकते हैं इससे. फिल्ट्रेशन, ड्रेनेज मतलब फिल्ट्रेशन का काम भी ये करता है. पानी फिल्टर करने का काम भी ये करता है. Geosynthetic inclusion with a soil mass can provide a reinforcement function by developing tensile force that contribute to the stability of geosynthetic soil composite. देखो, ये अगर हम किसी कंस्ट्रक्शन में इसको मिलाते हैं जियोसिंथेटिक को, तो ये रेनफोर्समेंट मतलब रॉड का, स्टील रॉड का काम कर सकता है ये. जैसे कि इससे क्या होता है कि टेंसाइल फोर्सेस पैदा होती है स्ट्रक्चर में, जो कि स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है सॉइल के ऊपर. कौन से कंस्ट्रक्शन में यूज़ कर सकते हैं हम इसको? रिटेनिंग स्ट्रक्चर्स, डैम प्रोजेक्ट्स, इन सब में यूज़ कर सकते हैं. Geosynthetic provide a drainage function by transmitting liquid within the plane of their structure with limited soil loss. फिल्ट्रेशन का भी काम कर सकता है. जैसे कि देखो, जियोसिंथेसिस से हम नाली भी बना सकते हैं. ड्रेनेज मतलब क्या होता है? नाली. इसकी यूज़ करके हम नाली भी बना सकते हैं जो कि जो भी पानी का बहाव को प्रॉपरली एक डायरेक्शन में बहा सकता है, सॉइल ज़्यादा लॉस नहीं करके. जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी आप इमेज देख रहे हैं, ये जियोसिंथेटिक मटेरियल है. काय में यूज़ हो रहा है? रोड कंस्ट्रक्शन में यूज़ हो रहा है. Geosynthetics are widely used in many geotechnical, environmental, and hydraulic applications related to groundwater quality and control. अब जियोसिंथेटिक के बहुत सारे कैटेगरीज है. जियोसिंथेटिक एक ये मेन मटेरियल है. अब इससे और क्या क्या बनता है? सबसे पहले जियो टेक्सटाइल. जियो टेक्सटाइल मतलब flexible textile like fabric of control permeability used to provide filtration, separation or reinforcement in soil, rock and waste material. They are textile in traditional sense but consist of fibers, cotton, wool or silk. यानी जियो टेक्सटाइल मतलब
कपड़े का भी अपन इससे बना सकते हैं, जो कि वेरियस इसमें यूज़ होगा। जियो मेम्ब्रेन कहाँ पर होता है? ये पॉलीमेरिक शीट है जो कि लिक्विड सॉलिड के बैरियर मतलब उसको सेपरेट कर सकती है, उसके बहाव को रोक सकती है। जियो ग्रिड्स मतलब क्या है? जियो ग्रिड अनस्टेबल सॉइल में आप इसको यूज़ करके इसकी स्टेबिलिटी बढ़ा सकते हो। ओके, देन जियोनेट क्या है? स्टिफ पॉलीमर नेट लाइक शीट विथ इन प्लेन ओपनिंग, यूज प्राइमरी एज अ ड्रेन मटेरियल विथ लैंडफिल और इन द सॉइल। जहाँ पर ऐसा पॉसिबल नहीं है कि सॉइल की स्टेबिलिटी ज़्यादा है तो वहाँ ऐसे नेट्स यूज़ करते हैं ताकि उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाए। जियो सिंथेटिक क्ले लाइनर वही लिक्विड और सॉलिड वेस्ट के लिए बैरियर जैसा यूज़ हो सकता है। जियो पाइप ड्रेनेज के लिए यूज़ हो सकता है। जियो कंपोजिट ये भी मतलब जो भी सॉइल रॉक और वेस्ट और लिक्विड फंक्शन है, यहाँ पर कोई डिज़ाइनिंग अगर हमको लगाना है तो ये जियो कंपोजिट का अपन यूज़ कर सकते हैं। जैसे देखो जियो टेक्सटाइल आपको दिख रहा है पहले इमेज में, कपड़े की जैसी शीट। जियो ग्रिड्स, जियो नेट, जियो मेम्ब्रेन, जियो क्ले लाइनर, जियो फोम, जियो सेल एंड जियो composites. Then next topic very important is noise reducing asphalt. Noise reducing road surface present the preferred solution for reducing traffic noise especially in urban area and are generally the most cost effective. देखो, नॉइस रिड्यूसिंग एक्सपर्ट मतलब रोड सरफेस ऐसा बनाया जाता है जिससे नॉइस पोल्यूशन ज़्यादा ना हो। द कॉस्टिक इमिजन ऑफ मॉडर्न पैसेंजर कार इज मेनली बाय नॉइज ऑफ द रोलिंग टायर। कैसे नॉइज प्रोड्यूस होता है? जो टायर अपने रोड सरफेस पे घूमती है उससे क्या होता है? नॉइस पोल्यूशन या नॉइस ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएट होती है। तो रोलिंग नॉइज इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द प्रॉपर्टी ऑफ द रोड सरफेस लाइक सरफेस टेक्सचर, अकॉस्टिक एब्जॉर्प्शन एंड एरोडायनामिक प्रोसेस, एयर पंपिंग। तो किसकी वजह से होती है? ये ज़्यादा से ज़्यादा रोड पे कुछ टेक्सचर देते हैं, जैसे सीमेंट रोड पे आजकल रफ बनाने के लिए उसको टेक्सचर देते हैं। देन एब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टी ज़्यादा अगर होती है रोड में तो ये सब की वजह से नॉइस पोल्यूशन ज़्यादा होता है। देयर आर सेवरल टाइप ऑफ साइलेंट रोड सर्फेसेज एंड फॉर अर्बन सिचुएशन थ्री सरफेस टाइप आर कॉमनली अप्लाइड। बहुत सारे सरफेस है जिससे नॉइस कंट्रोल हो सकता है और 3 टाइप के सरफेस ज़्यादा यूज में आते हैं। थिन सरफेस लेयर पहला, स्टोन मास्टिक एस्फाल्ट मतलब डबल लेयर बोलेंगे, और पोरस एस्फाल्ट। 3 टाइप के हैं सर, थिन सरफेस लेयर, स्टोन मास्टिक एस्फाल्ट एंड डबल लेयर पोरस एस्फाल्ट। जैसे कि अभी आप ये पहली इमेज देख रहे हैं तो थिन सरफेस लेयर, ये आई पहली इमेज थिन सरफेस लेयर की। ये जो सरफेस है क्या है? थिन है। स्टोन मास्टिक एस्फाल्ट ये क्या है? स्टोन की जैसी आपको सरफेस मिलती है, इसको बोलते हैं स्टोन मास्टिक एस्फाल्ट। देन डबल लेयर एस्फाल्ट, ये जो है ये क्या है? डबल लेयर एस्फाल्ट। अगर ऐसा हम लोग बनाते हैं तो क्या होता है? थोड़ा सा नॉइस पोल्यूशन कम होता है। पोरस पेवमेंट ऑल्सो नोन एज परमेएबल एंड pervious pavement provide storm water management by allowing water to move through voids within the pavement and infiltrate into underlying soil. पोरस पेवमेंट मतलब क्या? ऐसे टाइप का रोड, ऐसे टाइप का लेयर जो कि पानी को अलाउ करेगा अपने अंदर सोखने की। तो इससे क्या होता है? जितना भी पानी उस पर जमा होता है सबका जाता है ज़मीन के अंदर। This system reduces volume of runoff that would otherwise be produced by impervious surfaces such as parking lots, road and sidewalks. Porous pavement conserves water, reduces runoff, promote infiltration, which cleanses storm water, replenish aquifers and protect streams. Porous pavement are highly effective in reducing pollution in storm water runoff from pavement. इसमें ऐसा है, storm water मतलब अगर कोई इसका पानी आता है, समझ लो फ्लड आता है, सुनामी टाइप आता है, तो इसका क्या होता है? पानी ये जमा होने देता नहीं है, ये सब अपने आप में सोख लेता है। पेवमेंट स्ट्रक्चर एंड अनकॉम्पैक्टेड सबग्रेड टू मैक्सिमाइज द इन्फिल्ट्रेशन रेट ऑफ द सॉइल। A geotextile fabric that allowed water to pass through prevent
migration of fine material from the subgrade into stone recharge bed. Then stabilization cores or choker cores consisting of a clean single crush line smaller than the stone in the recharge base to stabilize the surface of paving equipment. तो पेवमेंट स्ट्रक्चर मतलब क्या, आप देख रहे होंगे ये पेवर्स, जैसा पार्किंग ब्लॉक्स में अपन पेवर्स, उसको हिंदी वर्ड गट्टू भी है, तो हम उसको यूज़ करके क्या करते हैं, एक सरफेस बनाते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, पेवर्स और पेवमेंट ब्लॉक्स। वो कंक्रीट के होते हैं, स्टोन के होते हैं। आपने अभी एनएमसी वाले जो फुटपाथ पे लगा रहे हैं, उसके बाद अभी जो सीमेंट का रोड बन रहा है, तो कुछ अगर छोटी सी जगह छूट जा रही है तो एनएमसी वाले उसमें क्या कर रहे हैं, पेवर्स लगा दे रहे हैं। तो ये काय के लिए, ताकि वो जो गैप है उसके थ्रू कहाँ जाएगा पानी, अंदर सॉइल और सब सॉइल में। तो असाइनमेंट नंबर 3 क्या रहेगा तुम्हारा, एक्सप्लेन जियोसिंथेसिस। इसमें पूरा जियोसिंथेसिस एक्सप्लेन करना है तुम्हारे को। लिस्ट एंड एक्सप्लेन कैटेगरी ऑफ जियोसिंथेसिस एंड एक्सप्लेन पोरस पेवमेंट। सो हमने आज की पॉइंट क्या देखे, रोड मटेरियल में टोटल 5 से 6 पॉइंट है, पर हमने आज कितने देखे, जियोसिंथेटिक, नॉइस रिड्यूसिंग एस्फाल्ट, पोरस पेवमेंट एंड बस ये 3 देखे। कल हमको प्लास्टिक रोड, एंटी आइसिंग रोड और पाइजो इलेक्ट्रिक रोड देखना है। कीप वॉचिंग, इसके एलबीडी सॉल्व करो। बी सेफ, थैंक यू।